आइज़िया 23 चैप्टर 24 चैप्टर पढ़ेंगे हम किंग्स जेम्स वर्जन में से। Miserable overthrow of Tyre, her restoration, etc. First verse. The burden of Tyre, howl ye ships of Tarshish, for it is laid waste, so that there is no house, no entering in from the land of Chittim. It is revealed to them, be still, ye inhabitants of the isle, thou whom the merchants of Zidon that pass over the sea have replenished. पवित्र आत्मा, इन वचनों को हम समझ नहीं सकेंगे, आप हमारी सहायता कीजिए। हमें ये वचनों की गहरी बातें समझ आए, ऐसा परमेश्वर अनुग्रह कीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन आमीन। आगे पढ़ेंगे तीसरा वचन से आगे, थर्ड वर्स से आगे। एंड बाय ग्रेट वाटर्स द सीड ऑफ Sihor, the harvest of the river, is her revenue, and she is a mart of nations. Be thou ashamed, O Zidon, for the sea hath spoken, even the strength of the sea, saying, I travel not, nor bring forth children, neither do I nourish up young men, nor bring up virgins. As at the report concerning Egypt, so shall they be surely pained at the report of Tyre. Pass ye over to Tarshish, howl, ye inhabitants of the isle. Is this your joyous city, whose antiquity is of ancient days? Her own feet shall carry her afar off to sojourn. Who had taken this counsel against Tyre, the crowning city, whose merchants are princes, whose traffickers are the honorable of the earth? The Lord of hosts hath purposed it, to stain the pride of all glory, and to bring into contempt all the honorable of the earth. Pass through thy land as a river, O daughter of Tarshish. There is no more strength. He stretched out his hand over the sea. He shook the kingdoms. The Lord hath given a commandment against the merchant city, to destroy the strongholds thereof. And he said, Thou shalt no more rejoice, O thou oppressed virgin, daughter of Zidon, arise. Pass over to Chittim, there also shalt thou have no rest. Behold, the land of the Chaldeans, this people was not, till the Assyrian founded it for them that dwell in the wilderness. They set up the towers thereof, they raised up the palaces thereof, and he brought it to ruin. Howl, ye ships of Tarshish, for your strength is laid waste. And it shall come to pass in that day that Tyre shall be forgotten 70 years, according to the days of one king. After the end of 70 years shall Tyre sing as an harlot. Take an harp, go about the city, thou harlot that hast been forgotten. Make sweet melody, sing many songs, that thou mayest be remembered. And it shall come to pass after the end of 70 years, that the Lord will visit Tyre, and she shall turn to her hire, and shall commit fornication with all the kingdoms of the world upon the face of the earth. And her merchandise and her hire shall be holiness to the Lord. It shall not be treasured nor laid up, for her merchandise shall be for them that dwell before the Lord, to eat sufficiently and for durable clothing. Chapter 24. God's judgments upon the land. A remnant shall joyfully praise him. First verse. Behold, the Lord maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof. And it shall be as with the people, so with the priest,
as with the servant, so with his master, as with the maid, so with her mistress, as with the buyer, so with the seller, as with the lender, so with the borrower, as with the taker of usury, so with the giver of usury to him. The land shall be utterly emptied and utterly spoiled, for the Lord hath spoken this word. The earth mourneth and fadeth away, the world languisheth and fadeth away, the haughty people of the earth do languish, the earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate. Therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left. The new wine mourneth, the wine languisheth, all the merry-hearted do sigh. The mirth of tabrets ceaseth, the noise of them that rejoice endeth. The joy of the harp ceaseth. They shall not drink wine with a song. Strong drink shall be bitter to them that drink it. The city of confusion is broken down. Every house is shut up, that no man may come in. There is a crying for wine in the streets, all joy is darkened. The mirth of the land is gone. In the city is left desolation, and the gate is smitten with destruction. When thus it shall be in the midst of the land among the people, there shall be as the shaking of an olive tree, and as the gleaning grapes when the vintage is done. They shall lift up their voice. They shall sing for the majesty of the Lord. They shall cry aloud from the sea. Wherefore, glorify ye the Lord in the fires, even the name of the Lord God of Israel in the isles of the sea. From the uttermost part of the earth have we heard songs, even glory to the righteous. But I said, my leanness, woe unto me. The treasurers, dealers have dealt treacherously, yea, the treasurers, dealers have dealt very treacherously. Fear and the pit and the snare are upon thee, O inhabitant of the earth. And it shall come to pass that he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit, and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare, for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake. The earth is utterly broken down. The earth is clean, dissolved. The earth is moved exceedingly. The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage, and the transgression thereof shall be heavy upon it, and it shall fall and not rise again. And it shall come to pass in that day that the Lord shall punish the host of the high ones that are on high, and the kings of the earth upon the earth, and they shall be gathered together as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited. Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the Lord of hosts shall reign in Mount Zion and in Jerusalem, and before his ancients gloriously. Thank you, Jesus. Thank you, Father. ये आखिरी वचन को ध्यान दीजिए. ये परमेश्वर ये सूरज और चांद को क्यों ऐसा लज्जित कर रहा है? ये चांद को क्यों वो रोक रहा है? सूरज को क्यों लज्जित कर रहा है? क्वेश्चन मार्क करके देखो अपने आप को. मैंने ये कंफर्म देखा है इतने दिनों के अंदर, जब मैं स्टडी किए जा रही हूँ मून फेसेस के बारे में. लोग क्यों फॉलो करते हैं इन शक्तियों को? क्या है इनके अंदर? ये तो जस्ट ऑब्जेक्ट है जो परमेश्वर ने बनाया है, और सूरज रोशनी देने के लिए दिन के लिए है और रात के लिए चांद है. फिर भी ये लोग क्या है इसके अंदर कि इसके द्वारा ये कुछ कर पाते हैं? ओके, तो मेरे अंदर का ये क्वेश्चन मार्क था. और ये भी है कि
यहोशू ने भी सूरज को रोक दिया था, दिन ढलने नहीं दिया था और वो समय को आने नहीं दिया था जो चांद के समय होते हैं वो आने नहीं दिया था। तो ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जो मेरे अंदर का आंसर्स मुझे मिल रहा है। अगर आपको पता चले तो पता चले। यहाँ पर ऐसा है 23 वर्ड्स में कि परमेश्वर चांद को गुस्सा कर रहा है, रोक रहा है और सूरज को शर्मिंदा कर रहा है। क्वेश्चन मार्क है, क्यों ऐसा परमेश्वर कर रहा है? चांद और सूरज ने क्या बिगाड़ा है? क्योंकि उनके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं जो वो मंजूर नहीं कर रहे, परमेश्वर के आज्ञा पालन में नहीं हो रहे। लोगों को वो जो दे रहे हैं वो कुछ है जो मैं बाद में इसके बारे में बात करूँगी। ये अभी हमारा बाइबल रीडिंग का विषय नहीं है। ये हम उसमें से मिला हुआ प्रकाशन को कैच कर लिए हैं। हम चराई में इसके बारे में बात करेंगे। हम चराई में जाएंगे, वो चैनल में इसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 23 अध्याय और 24 अध्याय। हिंदी में भी यशायाह बाइबल में से पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 23 अध्याय। सोर के विषय संदेश 23 अध्याय पहले वचन से। सोर के विषय में भारी वचन, हे तार्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया, वहाँ न तो कोई घर और न कोई शरण का स्थान है। यह बात उनको कित्तियों के देश में से प्रकट की गई है। हे समुद्र तीर के रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सिदोनी व्यापारियों ने धन से भर दिया है, चुप रहो। शिहोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी, क्योंकि वह दूसरी जातियों के लिए व्यापार का स्थान था। हे सीदोन, लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान ने यह कहा है, मैंने न तो कभी प्रसव की पीड़ा जानी और न बालक को जन्म दिया और न बेटों को पाला और न बेटियों को पोसा है। जब सोर का समाचार मिस्र में पहुंचे तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। हे समुद्र तीर के रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तर्शीश को जाओ। क्या यह तुम्हारे प्रसन्नता से भरी हुई नगरी है जो प्राचीन काल से बसी थी, जिसके पांव उसे बसने को दूर ले जाते थे? सोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, जिसके व्यापारी हकीम थे और जिसके महाजन पृथ्वी पर में प्रतिष्ठित थे, उसके विरुद्ध किसने ऐसी युक्ति की है? सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठितों का अपमान करवाए। हे तर्शीश के निवासियों, नील नदी के समान अपने देश के में फैल जाओ। अब कुछ बंधन नहीं रहा। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया है। यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों को नष्ट करने की आज्ञा दी है और उसने कहा है, हे सीदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तो फिर प्रसन्न होने की नहीं, उठ पार होकर कित्तियों के पास जा, परंतु वहाँ भी तुझे चैन न मिलेगा। कसदियों के देश को देखो, वह जाति अब न रही। अश्शूर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान बनाया। उन्होंने मोर्चे बंदी के अपने गुम्मट बनाए और राजभवनों को ढा दिया और उसको खंडहर कर दिया। हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजड़ गया है। उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक सोर बिसरा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर सोर वेश्या के समान गीत गाने लगेगा। हे बिसरी हुई वेश्या, वीणा लेकर नगर में घूम, भली भांति बजा, बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करें। 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा सोर की सुधि लेगा और वह फिर छिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के संग छिनाला करेगी। उसके व्यापार की प्राप्ति और उसके छिनाले की कमाई यहोवा के लिए पवित्र की जाएगी। वह न भंडार में रखी जाएगी, न संचय की जाएगी।
क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे, कि उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। 24 अध्याय पहले वचन से सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसी दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की। सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाख वाला मुरझा जाएगा, दाख लता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांसें लेंगे। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा की सुखदाई शब्द शांत हो जाएगी। वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे। पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस न सकेगा। थैंक यू जीसस। 11 वचन से आगे, सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसे कि जैतून झाड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाते हैं। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणानुवाद करो। पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि धर्मी की महिमा और बड़ाई हो। परंतु मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हो गया, नष्ट, क्योंकि विश्वासघाती विश्वासघात करते, वे बड़े ही विश्वासघात करते हैं। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड़हा और फंदा तुम्हारे लिए है। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नील डोल उठेगी। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे। और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। तब चंद्रमा, हालेलुया, संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। हालेलुया। मून फेसेस में मून के पीछे लोग क्यों जाते हैं? सन के पीछे, सूरज के पीछे क्यों जाते हैं? क्वेश्चन मार्क करके इसका आंसर आपको चराई में मिलेगा। ओके, चराई के चैनल में आपको मिलेगा।
प्रभु यीशु महान है, सर्वशक्तिमान है। सिर्फ उसी का प्रताप हमारे जीवन में बढ़ता रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान। एक साल तो हमने पढ़ लिया। 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 1 चैप्टर 24 वर्स से 34 वर्स, 1 किंग्स 2 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 24 वचन से 34 वचन तक। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान अपने अकेले में पढ़ेंगे। जब पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में इन वचनों को हम पढ़ रहे होंगे, परमेश्वर हमारे अंदर बड़े भेद और बड़ा सा उजियाला खोलने के लिए जा रहा है। इस अवसर को हमने नहीं खोना है। निश्चित पवित्र आत्मा हमारी सहायता में है कि हम इस अवसर का पूर्ण रूप से आनंद ले सके। परमेश्वर जो चाहता है उस समय के लिए, 2 साल के अंत में जो रखा गया है हमारे लिए, उस मंजिल में हम दिखाई दे। ये अनुग्रह का आत्मा हमारी सहायता कर रहा है, तो निश्चित हमने इस अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते हैं, तू बड़ा प्यारा परमेश्वर है। तेरे इंस्ट्रक्शंस जीवन देने वाले इंस्ट्रक्शंस है, जीवन के डेस्टिनीज में हमें पहुंचाने वाले इंस्ट्रक्शंस है। कोई चांद, कोई सूरज के पास, कोई पृथ्वी, कोई प्लैनेट के पास ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है जो यीशु मसीह में हमें तूने दिया है। सारे ग्रहों के इंस्ट्रक्शंस तू परमेश्वर नाकाम कर देता है जब तेरा इंस्ट्रक्शंस हम में तू लेकर आता है। तेरा उजियाला हम में प्रताप से भरा हुआ रहे। हम में तेरा उजियाला कभी घटने नहीं देना पिता, और हमें और किसी जगहों में से इंस्ट्रक्शंस आने पर भी पिता हमें उसमें ललचाने मत दे खुदा। हम सर्वशक्तिमान के इंस्ट्रक्शंस में बने रहे, अड़े रहे और खड़े रहे। हम नासरी यीशु में पवित्र आत्मा विनती करते हैं, हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, और हमें परमेश्वर चाहता है उस डेस्टिनी में पहुंचने के लिए ऑर्डरलीनेस में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, ईश्वरीय व्यवस्थितपन में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।